Hi, I am Syed Rashid. You are watching Ahle Bait High School and Junior College YouTube channel. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today we are learning physics class 12th, CLASS class 12th, or else we can say inter second year, isn't it? And we were learning chapter number 7. Could you tell me the name of the chapter, all of you? Yes, you are correct. Moving charges, CHARGES, and magnetism, MAGNE, magnetism, TISIM. So we were in this chapter. So today I will going to teach you one numeric, and the numeric we have with us that you can see I am writing question in front of you. Once I have completed this writing part, I will read and explain this question in Hindi. I will read this question in English, and surely you can understand by seeing itself in English language. So here you can see a current of 10 ampere passes through two very long wires, LONGS, not S here, LONG, long, WIRES, wires held, PARALLEL, parallel to each other, to EACH, each, OTHER, other, and separated, and SEP, ARATED, separated by a distance, by a DISTANCE, distance of 1 meter, isn't it? What? Now we need to find. This is the scenario or situation. It is given that a current of 10 ampere passes through two very long wires parallel to each other and separated by a distance of 1 meter. Now what we have to do? What is our work? We need to find what is the force, FORCE, force per UNIT, unit, like length, 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 between them, BETWEEN, between THEM, them. I will going to draw you rough diagram. You can go ahead. Now solution. You can see here we have two long wires. Okay, we can say that this is one wire and another is like this wire. It is very long, and in this wires, in both the wires, current is passes through like 10 ampere. Okay, and these two wires is separated by a distance of 1 meter, isn't it? So what we have to find? We have to find that force per unit length. We need to find the force per unit length. Per unit length, what is the force? Now solution. Given that, what it is given? GIVEN, given that current, 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 PASSING, passing through two wires, THROUGH, through TWO2, WIRES, wires. Like we can consider this wire as like current I1, and this is current I2. Okay, here I1 is equals to I2, and both are equal to 10 ampere, isn't it? Both the wire consist of 10 ampere. Now what is the distance? Okay, DISTANCE, distance, BETWEEN, between them, or we can write difference, not distance, distance between like two wires, two WIRES wires is equals to 1 meter. It is already given. Now we have to find FORCE, force per unit length, PER, per unit, LENGTH, length, is given as. Now we need to just write the formula with us, that here F by L is equals to like mu 0, we can say I1 into I2 by
2 pi r. This is one of the equation or formula for force per unit length you need to remember. Now I am going to substituting the values. Here if you want you can write the terms that what is F here. Okay, F is nothing but force, F-O-R-C-E, force, and L is nothing but L-E-N-G-T-H, length of wire we can say, or length of, yeah, it is single wire only. Now what is here? R. R is nothing but D-I-S-T-A-N-C-E, distance. I1 is equals to I2, which is nothing but, what is this? Current. C-U-R-R-E-N-T, current. And here mu 0. Mu 0 is nothing but, already I explained in our Biot-Savart law case that what is this here? Yeah, permeability, L-I-T-Y. The spellings is very simple, P-E-R-M-E-A, B-I-L-I-T-Y. Permeability of free space, F-E, free, S-P-A-C-E. If this type of numerics asks in 4 marks, means you need to describe these things also. So now the time to explain in Hindi. तमाम स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते कुछ सवाल में क्या दिया गया, 2 वायर्स है, ठीक है, करंट पास हो रहा 10 एम्पियर का थ्रू 2 वायर्स, वेरी लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग वायर्स है वो, जैसा कि मैंने अभी ड्रॉ किया था। दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, ऑपोजिट में है ईच अदर, और उन दोनों के बीच में जो फासला है वो है 1 मीटर का फासला है। तो अब उन दोनों का व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी उन लोगों के जो पर यूनिट लेंथ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी पर यूनिट लेंथ में फोर्स कितना प्रोड्यूस होता है, फिर कितना एग्जिस्ट करता है मालूम करना है। गिवन दैट हमने लिख लिया करंट पासिंग थ्रू दी 2 वायर्स, I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर, डिस्टेंस बिटवीन 2 वायर्स इज इक्वल्स टू 1 मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज गिवन एज F/L इज इक्वल्स टू म्यू 0 I1 I2 बाई 2 पाई R। ये एक फॉर्मूला है या फिर एक इक्वेशन है, आपको रिमेंबर याद रखना होगा। आफ्टर दैट आपको सिंपल F से क्या आता, फोर्स है, L से लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर लिखिए यहाँ पे, R से डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स लिख सकते हैं आप, डिस्टेंस बिटवीन वायर्स, WIRES, यहाँ पे वायर्स लिखना है, वेराज यहाँ पे वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि एक ही लेंथ हम कंसिडर करते हैं। I1 is equals to I2 which is current and mu naught is nothing but permeability of free space। तो यहाँ तक हमने लिख लिया। अब डायरेक्ट वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करना शुरू करेंगे। तो हम आपको याद रखिए यहाँ पे F/L ही फाइंड करना है। यहाँ पे हमको ये जो LHS है, वी आर नॉट सपोज टू डिस्टर्ब LHS को कभी भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। LHS इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, लाइक 4 पाई इंटू लाइक 10 पावर ऑफ -7, देन हमारे पास I1 I2 क्या है, इंटू 10 बाई, वेरस 2 तो अपनी जगह पे रहेगा, देर इज नो डिफरेंस, एंड पाई को भी मैं यहाँ पे अपनी प्लेस पे रख रहा हूँ, इंटू 1। तो यहाँ पे हम थोड़ा सिंस लिख लेंगे कि ये वैल्यू हमारे पास आए कहाँ से। देखिए म्यू 0 इज नथिंग बट 4 पाई इंटू 10 पावर ऑफ -7 रहेगा हमारे पास। I1 हमारे पास रहेगा 10, I2 रहेगा हमारे पास अगेन 10, R रहेगा हमारे पास 1। तो हम इसी से सब्सटीट्यूट करे हैं वैल्यूज। दिस स्टेप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग और वाइल यू आर writing intermediate public examination. One more thing I'd like to inform you that those who want to step in NEET JEE मेंस, जैसा कि BPC के बच्चे नीट करना चाहते और MPC के कुछ बच्चे रहते जो JEE और MSET लिखना चाहते, तो उसमें पक्का इस टाइप के न्यूमेरिक्स पक्का पूछता उन्हें। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे सकता, 1 मीटर के बदल में 2 मीटर भी दे सकता, 10 एम्पियर के बदल 20 एम्पियर भी दे सकता, बट इस टाइप से मिलते जुलते आपको प्रॉब्लम्स आते हैं। यू हैव टू बी परफेक्ट, और ये आईपी के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप मैं किस तरीके से कर रहा हूँ अच्छे से देखिए आप। दिस पाई गेट कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा, इज इंट इट।
तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10 इंटू 10, और एल्स हम इसको डायरेक्ट ये स्टेप में लिखेंगे 10⁻2 लिख लेंगे। 10 इंटू 10 हम क्या लिख सकते, 10 स्क्वायर लिख सकते। और यहाँ पे डिवाइडेड बाई में कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, क्यों नहीं बचा, देखिए 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 हो गया, और पाई पाई गेट कैंसल। मैं इसलिए इसको गहरा नहीं किया ऑल द स्टूडेंट, ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने बिल्कुल लाइट फिक्का मार्क किया है। इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 रहा तो उसको कुछ भी हम नहीं लिखते, जैसा है वैसा ही रहेगा वो। तो अब यहाँ पे f/l इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2 हो जाएगा। व्हेन द बेसेस आर द सेम पावर शुड बी एडेड। छोटे रहने हम पढ़े थे, याद है 4th 5th 6th 7th की मैथमेटिक्स। तो f/l हमारे पास फाइनली क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻5। दिस इज द फाइनल आंसर विथ अस। ओके, वेरी सिंपल एंड इजी, बट वन थिंग वी नीड टू गो अहेड विथ दैट, हमको लिखना होगा न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर क्यों लिख रहे हैं हम, देखिए जो फोर्स का हमारे पास यूनिट है वो न्यूटन है, बाई लेंथ का यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर, ठीक है, ये इसलिए हमने लिखा। तो अब एक आखिरी स्टेटमेंट लिख सकते, देयरफॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, LENGTH लेंथ, लाइक इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर। दिस इज द फाइनल स्टेप। सो वेरी इजी, बहुत आसान है। आप इसको कॉपी कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। फ्यू सेकेंड्स के लिए मैं यहाँ से हटता हूँ, आप कॉपी कर ले। Hope you have copied that problem. Make sure you need to practice more than one time to be thorough. Now I am going to solve one more numeric, and this numeric is very small and it might ask you for 2 marks. Okay, now you can see the question on the board. A circular coil, COIL, coil of radius, RADIUS, radius R. Here R is nothing but radius as well as distance also. Okay, having n tons, okay, n TURNS tons, carried carried a current, CURRENT, current I. Here for current we can use small I, okay, WHAT. What is its magnetic like movement, we can say movement. तो जैसा कि आप सवाल देख सकते हैं कि एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, इसका जो रेडियस है वो R है, ठीक है, और इसके अंदर क्या हो रहा, करंट कैरी हो रहा, जो I है, I करंट कैरी हो रहा। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जितना भी इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगा, उसका मूवमेंट क्या है, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताया जा रहा। बहुत आसान है, सॉल्व। नाउ वी कैन सॉल्व। मैग्नेटिक मूवमेंट is expressed as, is EXPRESSED, expressed as you can see here small m, okay, small m is equals to NIA. This is the formula again used for the BPC student for NEET and MPC student for JEE Mains and MCET. ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको हम अक्सर यूज़ होता रहता है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे m इज इक्वल्स टू NI इंटू वी हैव विथ अस लाइक पाई आर स्क्वायर, इजंट इट, वाई पाई आर स्क्वायर। हियर आई एम राइटिंग सिंस जो एरिया होता है उसका वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते कि जो मैग्नेटिक फाइनली यहाँ पे हम बोलेंगे कि m क्या है हमारे पास, m है हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट बोल सकते हैं आप, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड अक्सर यूजुअली स्मॉल b से डिनोट होगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वेरास मैग्नेटिक मूवमेंट को हमने m बोल दिया। n है हमारे पास नंबर ऑफ टन्स, NUMBER, नंबर ऑफ TURNS टन्स, ओके। I हमारे पास है CURRENT, करंट। यूजुअली I को स्मॉल ही लिखा जाता, अगर आप कैपिटल भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। R से हमारे पास है RADIUS, रेडियस, इजंट इट। तो ये हो गया आपका सिंपल एंड फाइन आंसर। देयरफॉर बोल के आपको ऐसे ही लिख देना है। वन मोर थिंग आई हैव टू इन्फॉर्म यू दैट
कि इस टाइप का आपको फिर अगेन 4 मार्क्स में पूछेगा। क्या पूछेगा? द नंबर ऑफ टन्स ऑफ एन कॉइल इज 100 टन्स, द करंट पासिंग थ्रू इट इज 10 एम्पियर समथिंग, ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ दैट वायर इज, डिस्टेंस भी दे देगा। फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैग्नेटिक मूवमेंट इज एक्सप्रेस्ड एज लाइक m इज इक्वल्स टू n i पाई आर स्क्वायर। तो n i r की वैल्यू आप डालेंगे। पाई की वैल्यू जैसा कि आपको पता है डिफ़ॉल्ट हमेशा जहाँ पे भी पाई आएगा अगर उसकी वैल्यू मेंशन नहीं है तो 22/7 रहता है, ये हमेशा यू हैव टू रिमेंबर। सो आई एम जस्ट स्टैंडिंग फ्यू सेकेंड हियर, यू हैव टू कॉपी दिस वन। नाउ we have some more questions with us, like what is the principle of moving coil galvanometer? moving coil galvanometer का principle क्या होता है? then what is the important of Oester's experiment? Oester's experiment का importance क्या है? तो ये 2-3 क्वेश्चंस है जो मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। so hope you have saw the some questions and answers फ्रॉम योर स्क्रीन। तो थोड़ा सा उसका खुलासा कर लेंगे हिंदी में, क्योंकि द क्वेश्चंस एंड आंसर्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज नीड नॉट टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश। थोड़ा सा समझिए। देखिए जो गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? तो देखिए जो प्रिंसिपल होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, इन्हें करंट को सब्जेक्ट करता है यूनिफॉर्म फील्ड से, और जब करंट और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यानी कि दोनों में सब्जेक्ट्स होता तो एक टार्क एक्सपीरियंस होता। तो ये है आपका गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल। नेक्स्ट है ओस्टर्स एक्सपेरिमेंट का इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए ओस्टर एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जहाँ पे भी करंट फ्लो होता मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती वहाँ पे, या फिर मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होती या क्रिएट होती। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऑब्जर्व करे जो मैग्नेटिक नीडल है उसका जो अलाइनमेंट है, लाइक क्या बोल रहे हैं ना, अलाइनमेंट टेंजेंशियल टू द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से जो ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंशियल रहता, जो कंडक्टर कैरिंग करंट, जो कंडक्ट जिसके अंदर करंट जा रहा है। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जैसा ही इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ओस्टर, इसकी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना आपको निकल के आया जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आ रहा आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि फिनोमिना है, यानी हमारे फिजिक्स की लैंग्वेज में बहुत बड़ा। तो ये ओस्टर एक्सपेरिमेंट है। और डिफरेंट बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर, जैसा कि एमीटर वोल्टमीटर का मेन डिफरेंस क्या रहता है? एमीटर आपको करंट मेजर करता, वेरस वोल्टमीटर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको लगाया था। एमीटर जो है उसकी जो रेसिस्टेंस रहता 0 रहता, और वोल्टमीटर क्या रहता? उसका रेसिस्टेंस इन्फिनिटी रहता। और एक सर्किट के अंदर जो एमीटर कनेक्टेड रहता वो यूजुअली सीरीज में रहता, और वोल्टमीटर जो कनेक्टेड रहता वो पैरेलल में रहता। तो ये एमीटर और वोल्टमीटर का जो आंसर है नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर मूविंग कॉइल, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, बट ऑल्सो इट कैन बी हेल्पफुल इन आवर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऑल्सो। तो ये आंसर आपको अच्छे से लर्न अप होना चाहिए, नॉट बडीफाई, रटने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू सी द पॉइंट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। तो उसके बाद और मैंने क्या लगाया था आपको क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है अभी आपको मैं बोल रहा हूँ ये 2 मार्क्स में पूछ सकता है आपको सीधा सीधा, यानी हाउ डू यू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसको हम एमीटर में कैसा बदल सकते। तो आंसर सिंपल, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक्ट एज एन एमीटर, एमीटर जैसा एक्ट हो सकता है इफ अ सूटेबल रो रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। उसके पैरेलल के अंदर एक लो रेसिस्टेंस कनेक्ट करके रखना गैल्वेनोमीटर को। तो किसको? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को। तो ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नहीं बल्कि एमीटर जैसा एक्ट करेगा। फिर और एक इंपॉर्टेंट सवाल अगेन फॉर 2 मार्क्स, लाइक हाउ डू यू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसको वोल्टमीटर में कैसा कन्वर्ट कर दे। तो इधर जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कनेक्ट करने के लिए हाई रेसिस्टेंस कनेक्ट करना है सीरीज में। यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लेंगे हम। यहाँ पे है मूविंग ओके कॉइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। 2 केसेस हैं यहाँ पे। एक तो हमको इसको करना है लाइक एमीटर में, एमीटर, और एक केस है वोल्ट मीटर, वोल्ट METER। तो एमीटर में कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन? रो रेसिस्टेंस
टेंस, TANC, रेसिस्टेंस किस में, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, हाई रेसिस्टेंस, HIGH, हाई RESISTANC, हाई रेसिस्टेंस किस में रखेंगे, यहाँ पे सीरीज में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी टॉपिक है जब आप इंजीनियरिंग मैथ्स या फिर BSc मैथ्स पढ़ोगे, और मेडिकल में भी बहुत सारा इस्तेमाल रहता है इसका। जो बच्चे BPC से BSc बॉटनी, जूलॉजी या फिर कुछ और सब्जेक्ट्स की तरफ जाते हो या MBBS की तरफ, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो ये है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स जितना भी मैंने अभी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ाया है, अच्छे से आप लोग उसको लिख लीजिए, समझिए, याद करिए। सो वी विल गोइंग टू स्टार्ट आवर वन ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट सेशन। सो टिल देन टेक केयर, हैव ए ग्रेट टाइम। आई एम सैयद राशिद, you are watching Ahle Baith High School and Junior College YouTube channel. Maintain notes, take care, have a great time. Thank you.